Good morning, students. Today I will explain HTML. Okay, it's a basic of HTML. Okay, what's the full form of HTML? The first question is put that. What do you mean that HTML? ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये पुट होता है कि आपकी HTML की फुल फॉर्म क्या है. The full form of HTML is hyper markup language. ठीक है, अगर हम hyper markup language बोलते हैं means that what you mean that markup language. ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की आपकी it is your markup HTML क्या है आपकी. ठीक है, देखिए and means that HTML is a language for describing web pages. ठीक है, HTML का जो मेन काम है वो है कि आपकी HTML is the language for describing web pages को describe करने के लिए. ठीक है, HTML stand for hypertext markup language. ठीक है, hypertext markup language. HTML is a markup language. A markup language, it means that it's a markup language is a set of markup tags. इसके markup language के set of markup tags. ठीक है, इनका काम क्या है? The tags describe documents content. The tags describe document content. डिस्क्राइब किसे करना? डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स को डिफाइन करना. HTML contains HTML tags and plain text. जो आपकी HTML है वो आपके HTML tags और plain text दोनों को कंटेन करती है. HTML documents are also called web pages. ठीक है ना. अब HTML tags की हम बात करते हैं. हमारे पास HTML markup tags are usually ठीक है. अब आपकी जो है HTML क्या है? HTML markup tags are usually called HTML tags. HTML tags are keywords, tag name, surrounded by angle bracket. Angular brackets किसे कहते हैं? जो आपकी greater than less वाली आप लगाते हैं, it is जो angular brackets के अंदर आप HTML के अंदर close. ठीक है, HTML tags normally come in pairs. जो भी आपके HTML टैग्स होते हैं, मतलब आपके दो तरह के टैग होंगे. एक होगा स्टार्ट टैग, एक होगा क्लोज टैग. जैसे मैंने ये टैग बी लिखा है, टैग बी मीन्स टैग बी इज मीन अगर हम इसे रेट टैग बी जो ओपन क्लोज्ड मीन्स जहाँ से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो रही है. अगर हम स्लैश बी लिख रहे हैं तो स्लैश बी मीन्स दैट इट इज नोन एज क्लोज टैग. ठीक है, उसके बाद आता है HTML tags normally comes in pairs में ही आएंगे. The first tag in pair is start tag and second tag is and tag. ठीक है, the and tag is written like the start tag with forward slash before the tag name. वही है कि सेम होगा फॉर आपके स्टार्टिंग टैग की तरह बट उसके आगे स्लैश हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट एंड टैग्स आर आल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग. ठीक है, उसके बाद आता है कि आपके जो HTMLs हैं, ठीक है ना. अब हम बात करते हैं HTML टैग्स में. ठीक है, अगर हमने कुछ लिखना है, अगर एग्जांपल लूं, HTML tags and HTML elements are often used to describe the same thing. ठीक है, HTML element, it's your paragraph. This is a paragraph tag. Paragraphs means that it's open brackets and this is a closed tag. There are two types of tags. Means that it you start with your paragraph and this is your closed of your paragraph. Means that it uses full stop. It means that
Full stop means that this line will be finished, means that the close tag means that this paragraph is closed on this point. It's clear? Now next is that ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि टैग लिखने कैसे हैं, बट हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो कहाँ पर रन होगा, कहीं ना कहीं तो रन होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है कि उससे पहले हमें पता होना चाहिए वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर्स मींस द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर्स सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स टू रीड HTML documents and display them as web pages. ठीक है। Web browser, the browser does not display the HTML text but uses the text to determine how the content of the HTML page is to present it, display onto the use. अब देखिए ये चीज तो हो गई हमारी ना। अब देखिए अब जो हमारा स्ट्रक्चर है HTML वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे HTML जो आपका स्टार्ट होगा। अच्छा मैंने बताया कि आपके जो भी कोड्स होंगे वो आपके पेयर्स में होंगे। ठीक है, पेयर्स में होंगे आपके जो भी कोड्स होंगे। अब देखिए कैसे HTML ओपन हुआ है तो वो क्लोज्ड भी होगा। जो सबसे पहले क्लोज्ड हुआ है, ओपन हुआ है, वो सबसे लास्ट में ही क्लोज्ड होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो मीन्स दैट जो सबसे पहले ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज, सबसे बाद में क्लोज्ड होगा। सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज दैट बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ एंड क्लोज। देखिए मैंने एक सिंपल HTML लिखा, HTML बॉडी, हेडिंग दी, दिस इज हेडिंग H1 H2 H1 से लेके H6 तक आपके पास हेडिंग साइज होते हैं। ठीक है, हमने एक हेडिंग साइज लिए H1, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले उससे पहले साथ के साथ आपने क्लोज कर दिया। अब बॉडी क्लोज है, बॉडी के अंदर ये चीजें आपने डिफाइन। ठीक है, बॉडी क्लोज हुआ। ठीक है, एंड देन HTML। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग वर्जन हैं आपके। ठीक है, HTML प्लस HTML 2.6। ठीक है, अब आपका कौन सा चल रहा है? 2013 के बाद आपका चल रहा है HTML5 एंड XHTML5। ठीक है, अब होते हैं एडिटर्स, कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अडोब ड्रीमवेवर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब या कॉफी कप HTML एडिटर या नोटपैड में आप यहाँ इन जगह पर इन चीज इसको HTML को इम्प्लीमेंट करके रन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला बेसिक आता है आपका HTML का, आता है HTML हेडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपने साइज लिया था कि H1 से लेकर हमारे पास H6 तक साइज होते हैं। ठीक है, HTML headings are defined with H1 to H6 tags। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H1 क्या है, दिस इज ऑफ हेडिंग H1, H2 मीन्स दैट आप H6 तक सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है आपका H1 एंड H2 सबसे बिग साइज। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है, अब उसके बाद आता है हमारे पास हेडिंग टैग्स के हो गए H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, उसके बाद आता है आपका HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ, HTML paragraphs are defined with the paragraph tag. P stand for paragraph tag. ठीक है, पैराग्राफ मीन्स दैट दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है पेयर्स ऑफ में आएगा, तो मीन्स दैट द फर्स्ट इज द ओपन पैराग्राफ टैग एंड द सेकंड इज दैट द क्लोज्ड पैराग्राफ टैग। ठीक है, इट्स योर पैराग्राफ। यहाँ पर ये क्या था आपका पैराग्राफ था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट चीज आती है आपकी HTML लिंक। HTML लिंक में क्या है, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद अ टैग A। जो आपकी HTML लिंक होता है, जब हम कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने वेब पेज पे, किसी वेबसाइट पे आपका लिंक प्रोवाइड होता है, उसके लिए टैग यूज किया जाता है, टैग A। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये चीज आ गई हमारे पास, हमने ये लिखा। ठीक है, अब देखिए हमने टैग A, ठीक है, एंड टैग क्लोज। ठीक है, ये देखिए टैग है। यहाँ पर आप पूछ रहे कि यहाँ पर एरो क्यों नहीं लगा है, जब हम टैग, क्योंकि इसके टैग के अंदर हमने डिफाइन करना होता है। ठीक है, टैग A, H रेफरेंस जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं
हमने इस वेबसाइट का लिंक डाला, इसे क्लोज किया, दिस इज अ लिंक एंड क्लोज्ड इट इज योर लिंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट it's your next tag is that HTML image। जो HTML इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग, ठीक है। HTML इमेज आर डिफाइंड विद द IMG टैग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हैं, ठीक है, इसमें इस चीज को इंक्लूड नहीं। एग्जाम्पल हमने लिखा इमेज सोर्स w3 school डॉट jpg विथ 104, जो अपनी विड्थ कितनी ज्यादा, मतलब आप फुल स्क्रीन इमेज देना चाहते हो 50% 60, कहीं जगह पर ये परसेंटेज में भी डिफाइंड होती है, ठीक है। ये तो 50%, 40%, 30%, 100%, वो आपकी चॉइस, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट, अब देखिए ये चीज हो गई है आपकी। अब देखिए यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इसको HTML एलिमेंट्स को, ठीक है। अब देखिए HTML documents are defined by HTML elements, and HTML elements is everything from the start tag to the end tag. The start tag is often called the opening tag, ठीक है। The end tag is often called the closing tag। ये देखिए start tag, एलिमेंट कंटेंट ये होगा जो हम बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, एंड दिस इज योर एंड टैग, क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम इसमें क्लोज करें, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टैग, हम एग्जांपल लेते हैं HTML बॉडी पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ बॉडी क्लोज्ड एंड HTML क्लोज, ठीक है। अब आते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, HTML elements with no content are called empty elements, ठीक है। HTML elements with no content are called empty elements। BR is used for break a line या next line में जाने के लिए, ठीक है। break a line means वहां से टूट दी next line। BR is an empty element without a closing tag, इसमें किसी भी closing tag की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप BR लगाओ वो next line में। BR is an empty element without a closing tag। The tag BR tag defines a line break, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज देखिए, एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएं, attributes provide additional information about HTML elements, ठीक है। HTML elements can have attributes, ठीक है। attributes provide additional information about an element, ठीक है। attributes are always specified in the start tag, जो भी एट्रीब्यूट्स है वो स्पेसिफाई होते हैं आपके स्टार्ट टैग में। एट्रीब्यूट्स कम्स इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम एंड वैल्यू, इट्स H reference, it's your reference http://www.my.com, this is the link of your tag, ठीक है। नाउ इट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नाउ HTML हेडिंग, ठीक है। HTML heading से headings defines with the H1 to H6 tag। H1 is the most important heading and H6 the least important heading, ठीक है। and H1 H2 is the normal size of your heading, ठीक है। now HTML lines, ठीक है। HR creates horizontal line in a HTML page। जब आपने हॉरिजेंटल लाइंस को डिफाइन करना है वहां पर हम क्या करते हैं, इन एन HTML पेज, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट HR एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट को सेपरेट करने के लिए भी। एग्जांपल पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ हॉरिजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ मींस दैट एक एक लाइन में हम लाना चाहते हैं इसमें, ठीक है। फिर HR टैग लगाया, फिर हमने पैराग्राफ P, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। HR फिर दिस इज नेक्स्ट, मींस दैट एक एक लाइन में अगर हमने थोड़ा सा कंटेंट लिखा, फिर सेकंड कंटेंट, फिर थर्ड कंटेंट, वो आपकी चॉइस है किस तरीके से आपने करना है। यस,
जैसे आप ए बी सी डी करके डालना चाहते हो उस तरीके से भी आप जैसे हम कहते हैं चेंज द लेआउट या लिस्ट लिंक लिस्ट चेंज कर देना, तो दूसरे एक लाइन से दूसरी लाइन मिला देना। ठीक है, उसके बाद कमेंट मतलब हमने किसी भी चीज को कमेंट करके लिखना है। Comment can be inserted into the HTML code to make it more readable and understandable. Comments are ignored by the browsers and are not displayed. डिस्प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ आप एक कमेंट लाइन में कमेंट्स आर रिटन लाइक दिस एग्जांपल, दिस इज अ कमेंट। आपने कंपनी पर देखा बॉक्सेस बने होते हैं, वहां पे लिखा होता है कि एक जो कमेंट्स हैं क्लिक, आपने इस पे कमेंट लिखकर छोड़ दिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है HTML पैराग्राफ। इट्स योर पैराग्राफ टैग जो ऑलरेडी मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ उस चीज को आपको। दिस इज सेम, दिस इज अ पैराग्राफ टैग एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ टैग। ठीक है, उसके बाद लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए मैंने आपको BR बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट्स यूजर BR टैग जो आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टैग्स। हम कहीं बार वर्ड में यूज करते हैं। ठीक है, HTML uses tag like B, I, italic लिखते हो, bold, italic, formatting, bold, ये सब करना। ठीक है, ठीक है, bold means that defines bold text, emphasize text, italic text, small। ठीक है, it is your formatting text, B, EMPI, small, strong, subscript means that it's your pace। ठीक है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट डिलीट एंड मार्क योर टैग। ठीक है, उसके बाद आता है HTML hyperlink provides your tag A means that to provide the link of any website and to provide the link of your any word। HTML tags define hyperlink. Hyperlink is a word group of words or image that you can click on the jump to the another documents। The most important inputs is tag A elements is the H reference attributes which indicates the link destination। Okay, it means that it's an unvisited link is underlined and blue line। जो आपका blue line color से होता है, unvisited link underlined and blue link। ठीक है, the visit link underlined and purple। ठीक है, and the active link is underlined and red। ठीक है, अब आता है HTML head। HTML head क्या है? ठीक है, HTML अगर हम head के HTML head elements is container for all head elements। Elements inside head can be include script, instruct the browser where to find style sheet and provide the meta information and more। ठीक है, सबसे पहले आप उसके हम हेड की बात कर लिखते हैं HTML टाइटल। इट्स योर HTML टाइटल एलिमेंट। द टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफाइंस द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो जिस वेब उसके टाइटल को डिफाइन करना है। ठीक है, द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, द टाइटल टाइप दिस, ठीक है, क्लोज भी होगा ओपन भी होगा। डिफाइंस द लिटिल इन द ब्राउजर टूल बार। ठीक है, प्रोवाइड्स अ टाइटल फॉर द वेब पेज व्हेन इज एडेड टू फेवरेट्स। ठीक है, डिस्प्ले अ टाइटल्स फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी HTML स्टाइल एलिमेंट। HTML style elements means that the style tag is used to define styles information for an HTML documents। ठीक है, inside the style elements you specify how HTML should be rendered in the browser। head स्टाइल टाइप आपने टेक्स्ट लिया। ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड जो भी आप कलर्स देना चाहते हैं। स्टाइल, यहाँ स्टाइल क्लेज ओपन क्लोज भी होगा जहाँ पर आप टेक्स्ट और सीएस बताओगे किस तरीके का। बॉडी में बैकग्राउंड कलर उसका डिफाइन कर सकते हो, पैराग्राफ का कलर बता सकते हो, स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज्ड। ठीक है, हमारे पास जो HTML स्टाइल CSS में होते हैं वो होते हैं 3 तरह के होते हैं। CSS was introduced together with HTML4 to provide a better way to style HTML elements। ठीक है, CSS can be added to HTML in the following ways: inline, internal and external। In inline, using the style attributes in HTML elements।
इंटरनल यूजिंग स्टाइल एलिमेंट्स इन द हेड ऑफ सेक्शन, हेड में होगा, एंड एक्सटर्नल यूजेस एक्सटर्नल सीएसएस फाइल. ठीक है, इट्स योर टॉपिक. This concept will be clear. Okay, it's a main basic concept of HTML, to define the basic concept of HTML. Thank you so much, class. Thank you very much.